Hello, welcome to JPT ISPCS. Today we will discuss the Vivek Sir Economy 450 for the exclusively prelims 2024. Okay, so this PDF is really recommended for the aspirant who are going to attempt this year prelims 2024, and they can refer this PDF exclusively for the revision of whole the syllabus. They have really framed the question and MCQ very well, and these MCQ I have saw that they are really based on the PYQs. So without the wasting the time, let us start, and we will first start the most important section, which are the money and banking. Okay, so we will start from this, which question start from the 35. So we will just go and we will start the solving, and I will confirm more details, and please if you want to write you can write it, and I will make you understandable. And please, as you know that uh, in the economy question are much are related from the PYQ, and they have also included the PYQ. So let us start from the 35 to 36 is a question start. Okay, so this I question. So let us start from the 34 question. Okay, so in this they are asking ki which of the following commodities had the highest share in the merchandise export in financial year 2023 and 24. So they are asking the highest export in this year, this financial year. As we know that in 2023, UPSC has asked about the gold, the highest number of gold import from which country. I think answer was that question is Switzerland. So let us solve this question. So first is the we will solve from the D. So D is saying that it is rice including basmati rice has the highest share. So no, because we know that in the agriculture section, non-basmati rice has highest share in export. Marine product, it has a share, well share in the export, but it has not highest. Gold and jewelry, it come in second and third place in the export, and petroleum product come at the first place. So in the export section, petroleum product come at the first place in the export 2023-24 financial year. So in the export petroleum product, okay, but in the import, one minute, please ignore the outside voice. Some voice are coming as my room at the side of road. So please ignore that, and I will try to pause the video when the noise is very high. So let us. I was telling that the petroleum product has a highest share in export, and please remember that the crude oil has highest import. So petroleum product we are exporting highest, and crude oil we are importing maximum. So we are importing the crude oil as we have greater infrastructure in the refinery sector. So we are refining that good product and making the product and exporting the countries of like a USA, even the you can say Southeast and Central Asia. We have greater export zone in those areas. Okay, so let us solve the second 35 number question. So they are asking about what were the reason which led to bank nationalization of 1969. As we know that in 1969 first phase of bank nationalization led. So he is asking you what are the reason which led the bank nationalization. So we will start from the number 4. So number 4 is saying that easy and cheap availability of credit to a few industries houses had encouraged growth of monopolies. Yes, as we know that during the 1950 and 16 only around 200 people are which were even has a they are controlling the industries of almost all the big industries, and they are also the member of bank board.
So these big industry get the loan very easily from the bank because they are the also controller of the bank board and they are also the chairman of the big industries. So this is of course one of the reason because there were the monopolies of only few people which get the loans and also which are the chairman of the big industries, and it led to not flourishment of the small industry because small industries not getting the credit. Okay, so yes, it is the reason for the bank nationalization. Third is saying that ki bank credit was not utilized for the financing project according to the planning and priority. Yes, it is also correct because we know that we have a 5 year plan and that plan we have set the target. But as if, we need to like give the loan for the poor, need to elevation of the poverty, need to the in the go loan and channelized loan in the agriculture sectors, open the banking in the rural areas. But because it is not happening because of the monopolies, they are more tend to open the bank in the urban areas. So yes, this is also one reason because the project and the target are not fulfilling by the banks, and there is the nexus between the bank and industries. Okay, that is also one reason. Second देखते हैं, agriculture and small scale industries were not, yes, I have already told you कि small scale industries and agriculture sector both were not getting the proper access of banking facilities. Even I told you that banking service is not available in the rural area because bank were reluctant to open their branches in the rural area. You can see in the first even expansion of bank branches was mostly in urban area, means they were reluctant to open the branches in the rural areas. So as per our answer, it will be all of the correct. Okay, so let us see. Yes, all of the correct. So D would be correct option. In the objective, the nationalization of the bank is done for the lofty objective. Like that, it is the main objective of the nationalization of the bank were to class banking to mass banking. Means class banking means these were, I told you कि only 200 people were there around which were controlling the even the bank and industry, and they are have an access to get the loan very frequently. So these were the classes which were getting the proper loan and even they are not repaying the loan. And poor people and agriculture sector and rural area even not branches were there too. So the objective or the main objective of the bank nationalization were the referring the bank or getting the bank facility to from the class to mass, from the urban to rural area, from the rich elite people to every section and small scale industries. So okay, I think we have discussed this question very well. Okay, so let us please be here. You will see further very important question are going to come. So don't skip and I will clear your all the issue and anything you have a confusion in any question. I will ensure that your question should be clear. So okay. So they are asking which of the following are part of seniorage. Okay, so first I want to make you understand कि what is seniorage. Seniorage is, we can say, the benefit or profit of the central bank on the currency between the difference of face value and 1 minute. Yes, between the difference of face value and the real price of the currency. Okay, or between the difference of the face value and द इशू, मतलब जितना इशू करने में करेंसी में पैसा लगा एंड जो फेस वैल्यू होगी उसका डिफरेंस को ये सीनियोरेज में हम ले सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं जितना भी बेनिफिट और प्रॉफिट होता है सेंट्रल बैंक का उसको हम सीनियोरेज में काउंट करते हैं। ओके, तो लाइक फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि 100 रुपए आरबीआई को प्रिंट करना है तो 100 रुपए थोड़ी लग जाएंगे प्रिंट करने में, आरबीआई को 100 रुपए नहीं लगेंगे। तो इसको आरबीआई को मान लो 5 रुपए लगे प्रिंट करने में, तो 5 रुपए का कागज इंक वगैरह सब कुछ लाया। तो अब इसमें 95 जो रुपीज होंगे
वो आरबीआई का बेनिफिट हो गया। तो इट इज द सीनरीज आप कह सकते हो इन द वन सेक्शन की दैट यस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द रुपीज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द रुपीज माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, so let us start to all are the means benefit of the RBI institution is covered under the CNRH। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑन रिजर्व kept with RBI for money creation। Yes, it is under the seniorage. It is a interest income on reserve kept with RBI for money creation like a CRR। तो CRR में RBI को तो नहीं पे करना पड़ता, ओके, बट आरबीआई ये पैसा तो दे सकता है ना बैंक को, और उससे इंटरेस्ट लेगा तो उससे बेनिफिट होगा आरबीआई को, तो यस इट इज इंक्लूडेड। सेकेंड, interest accruing from bank balance kept with central bank as a interest free balance in order to meet the reserve। again CRR you can take a example। and yes interest जो ये जो बैंक होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उनको हमको पता है CRR आरबीआई के अंडर रखना पड़ता है। ओके, तो वो उस पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता। प्लीज बी प्रिपेयर कि सीआरआर पर आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देता, बट आरबीआई थोड़ी ना ऐसा है आरबीआई कि हाँ उसको ये पैसा जो सीआरआर का वो आरबीआई बैंक को रेपो में नहीं दे सकता। तो रेपो में जो देगा वो उसका इंटरेस्ट पे उस पे इंटरेस्ट कमाएगा आरबीआई, और वो उसके सीनियरिटी या प्रॉफिट में जाएगा, बेनिफिट होगा। थर्ड, इन्फ्लेशन टैक्स। यस इट इज ऑल्सो हाउ यू मे बी कंफ्यूज बट लेट अस मेक यू अंडरस्टैंडेबल कि जैसे सोचो आज आपके पास 100 रुपीज है, ओके, अगर आपने इसे बैंक में जमा किया होता तो आपको एक साल बाद मान लो 10% डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है तो आपका 110 हो जाता, बट आपने ये जमा नहीं किया, ओके, तो अभी आपका 100 रुपए है, बट इन्फ्लेशन तो भाई बढ़ रहा है, मान लो 6% से बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। तो अब जो इन्फ्लेशन टैक्स है मतलब ये 6 रुपए तो आपके पावर पैसे की पावर परचेसिंग पावर कम हो गई, तो डीज इन्फ्लेशन टैक्स से आरबीआई की जो लायबिलिटी होती है वो कम होती है, और जब लायबिलिटी किसी की कम होगी तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा उस इंस्टीट्यूशन को। तो यस दिस इज आल्सो इंक्लूडेड। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दी अबव। If you have not understood, please comment. I will make another video only on the sceneries. I will make you understand. Okay. So next question we can see 37. So they are saying that ki 1 minute. Where is the 36 number question? 1 minute, please wait. Yes, 37. Okay. We have discussed 36 before that. भूल जाता हूँ मतलब बिल्कुल बिजी हो जाता हूँ ना पढ़ाने में। Okay, so let us understand what is the 37। it is saying that कि if a country has paid, देखो यहाँ पर आप ना पहले अगर समझने के लिए एडजस्टेबल काट दो, एडजस्टेबल भूल जाओगे, ओनली पेड से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मान लो समझने के लिए। तो इफ अ कंट्री हैज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो बताओ क्या मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस होगा या क्या इफेक्ट होगा। तो देखते हैं। Yes, now we will see। सेकेंड से पढ़ते हैं। If the country devalues currency in proportion to the inflation, then its export may remain competitive। Yes, it is correct। How it is correct? Let us discuss। Yes, so now we can it is saying that if country devalue its currency in proportion to the inflation, then its export may remain competitive। It is correct। We will discuss। Let us see the first। Inflation in the country may make its export less competitive। देखो दोनों बहुत सही एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज ये पहला कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन होगा कंट्री में तो एक्सपोर्ट जो होगा वो लेस कम्पिटेटिव हो जाएगा। तो अब सेकेंड ऑप्शन पढ़ो। इफ द कंट्री डिवैल्यू इट्स करेंसी, मतलब डिवैल्यू क्यों करेंगे? जो इन्फ्लेशन है उसको कवर करने के लिए, और जब वो कवर हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस में आ जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा या कांस्टेंट रह जाएगा। तो कैसे? लेट अस सी।
सो लेटेस्ट सी, अगर जैसे देखो डिवैल्यू करेंसी का देखते हैं। अगर पहले मान लो $1 जो था वो इक्वल टू 60 था। अब डिवैल्यू करने का मतलब ये हो गया, बहुत अच्छे समझ लेना, $1 मान लो 120 रुपीज के इक्वल हो गया। ओके, 120 रुपीज के इक्वल हो गया। तो अब जैसे कि जो फॉरेनर्स हैं, मान लो जो यूएसए का है, तो वो पहले क्या होता था कि जब यहाँ डिवैल्यू कर दिया गया पैसा, तो मान लो यूएसए में क्या है, तो अब जो उसको $1 में जितना सामान मिलता था, मान लो तब तक 60 का सामान मिलता था, लेकिन अब उस यूएसए वाले को एक ही डॉलर में 120 का सामान मिलेगा। मान लो तब 60 का जो था एक बर्गर था, अब 120 में उसको दो बर्गर आ गए। क्योंकि हम एक बात याद रखना, जब हम बहुत ज्यादा लिंक नहीं करेंगे इसको, तो दो बर्गर मिल लेंगे, क्योंकि यूएसए में तो इन्फ्लेशन को हम ले नहीं रहे हैं। ओके, सो ऐसे आप समझ सकते हैं। सो इफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री मेक इट्स एक्सपोर्ट लेस कम्पिटिटिव। यस, अगर मान लो जैसे कि पहले 30 रुपए का बर्गर था और 20 रुपए का यूएसए में था, 30 रुपए का इंडिया में था, ये इंडिया का हो गया, ये यूएसए का हो गया। तो 1 मिनट, यस, तो अब क्या होगा, अगर 30 रुपए का 1 मिनट, इसको 50 करते हैं समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझ में आए। यस, यूएसए में 50 रुपए का बर्गर है और इंडिया में 30 रुपए का है। तो क्या होगा कि अगर, अब क्योंकि वहां यूएसए में मान लो 50 रुपए, मतलब मैं परचेसिंग पावर पीपीपी में देख रहा हूँ, डॉलर नहीं, अभी डॉलर को नहीं, पीपीपी में देखो इसको। तो यूएसए में मान लो एज 50 रुपए का जितना भी मतलब डॉलर होता है पॉइंट में उतने का बर्गर है, और इंडिया में 30 का है। तो अब ये जो यूएसए वाले होंगे वो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। बट अगर इन्फ्लेशन होगा, ये 60 का हो गया, तो ये क्यों इंपोर्ट करेंगे भाई, वो तो उनके कंट्री में ही सस्ता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक दैट। ओके, सो प्लीज बी प्रिपेयर। तो उसमें दोनों करेक्ट। फिर 38 देखते हैं। Which of the following statement are true regarding India's present exchange rate? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज रियली वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन। सो लेट अस सी, 3 से पढ़ेंगे एज यूजुअल। तो 3 कहता है आरबीआई रेगुलेट द फॉरेक्स मार्केट। देखो यहाँ कहता है रेगुलेट करता है फॉरेक्स मार्केट। यस, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, वी नो दैट। सो यस, इट इज करेक्ट। सेकंड कहता है आरबीआई जनरली, टर्म पर फोकस करना, जनरली इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट इनडायरेक्टली। यस, इट इज नॉट इन द आरबीआई इन नॉट इंटरवीन डायरेक्टली इन द फॉरेक्स मार्केट। लाइक अगर डॉलर, 1 मिनट, अगर डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो आरबीआई जो करेगा वो क्या करेगा, डॉलर स्टॉक, तो वो डॉलर सेल करेगा एज ए एजेंसी बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है ये सब हो गए, सेल करेंगे। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो इंटरवीन करता है आरबीआई। ये कहते हैं आरबीआई रेगुलेट द रूपी डॉलर। ये देखो, नहीं भाई, आरबीआई नहीं रेगुलेट करता, प्लीज बी प्रिपेयर। हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो हम मार्केट एंड डिमांड पर अप्लाई होता है। हमारा एक्सचेंज रेट तब कब तक अप्लाई रहता है, जब तक कि बहुत ही सिग्निफिकेंट और चेंज ना हो जाए, बहुत ही वोलाटिलिटी मार्केट में ना आ जाए, तो तब तक हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसका क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोट और डर्ट फ्लोट सिस्टम। हम मैनेज करते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी आ जाती है, जैसे कि $1 था कितने में, मान लो 60 में था, नाउ $1 हो गया 70 में, मतलब बहुत फास्ट डिवेल्युएशन हो गया करेंसी का, तो डिप्रिसिएशन हो गया। डिवेल्युएशन और डिप्रिसिएशन हैज ए डिफरेंस, वी विल अंडरस्टैंड लेटर। सो डिप्रिसिएशन हो गया, तब आरबीआई आ जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा कि $1 60 था, फिर 61 हो गया, तो आरबीआई नहीं इंटरवीन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। so what would be correct? Correct is would be 2 and 3। तो इतना ही इसमें याद रखना था। 1 मिनट, yes, dog are barking, so I again start to bark. Please ignore the outside voice, how much I should pause the video, it's really disturbing the class।
So let us, I just in this question we have to remember that कि RBI does not regulate the dollar and rupees rate or exchange rate. Just RBI only it is there, मतलब RBI only enter in the exchange rate system when the volatility is much, and in the general system or in the जनरल टाइम इट इज मार्केट डिमांड। तो ये फर्स्ट रॉन्ग था, तो उसके हिसाब से हमारा 2 एंड 3 सही हो गया। Okay, so let us 39 number question. RBI intervene in the foreign exchange market to, मतलब किस लिए RBI इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके देखते हैं, एक्सचेंज मार्केट फॉर व्हाट। तो फर्स्ट है टू सेट अ प्राइस बैंड फॉर रुपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। देखो हमने पहले ही बताया कि भाई आरबीआई जो होता है उसको कोई ऐसा लीगली वो नहीं है, बाउंड नहीं है कि हाँ $1 से नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मार्केट डिमांड, मार्केट बेस है। तो आरबीआई कोई भी प्राइस सेट नहीं करता रुपी और डॉलर में, मतलब एक्सचेंज रेट यू कैन से। तो आरबीआई डज नॉट फिक्स द एक्सचेंज रेट, तो इट वुड बी रॉन्ग। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन वुड बी रॉन्ग। फिर से मैं बताता हूँ, yes, so it is saying the band for rupee in terms of dollar, so no, it is not something which RBI said, it is something which market led। तो एक्सचेंज है, तो ये गलत हो गया हमारा सेकंड। फर्स्ट देखते हैं, टू कंटेन द वॉलेटिलिटी इन द रूपी। यस, इंटरवीन किस लिए करेगा आरबीआई मार्केट में? वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए रुपी की। वॉलेटिलिटी मतलब जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाए, मतलब कल जैसे 60 था और आज $1.70 के बराबर हो जाए, तो आरबीआई इंटरवीन करेगा। बट इसलिए इंटरवीन नहीं करेगा क्योंकि कल 60 था, 61 हो गया, तो चलो हम बैंड सेट करते हैं। बैंड सेट करना मतलब कि जो सेट हो गया है उसी पे फिक्स पर रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है आरबीआई करेगा। तो सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। I had already told this question in first answer even, first question मतलब even। okay, so 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परचेसिंग पावर पैरिटी। सो परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, तो पहले हम परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट समझते हैं। ओके, let us understand first what is purchasing power parity exchange rate। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि नॉमिनल, जो हम देखते रहते हैं कि हाँ आज इतना रुपया, वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। तो नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें हम मानते हैं कि जो बर्गर है, बर्गर ही लेते हैं या मान लो कुछ भी ले लेते हैं, बर्गर ही ले लेते हैं। तो बर्गर जो है वो इंडिया में कितने रुपए का है, मान लेते हैं 60 का है, अभी तक 60 लेते गए। और यूएसए में कितने का है, $1 का है। ओके, इंडिया में 60 रुपीज का है, यूएसए में $1 का है। तो आप ये बताओ, बर्गर जो इंडिया में 60 का है और यूएसए में $1 का है, तो अभी हम ये देखते हैं कि जो $1 है वो कितने के इक्वल हो गया, 60 के। बट अगर एक्सचेंज रेट कितना हो गया, मान लेते हैं एक्सचेंज रेट कितना है, एक मिनट, एक्सचेंज रेट है 80, $1 इक्वल टू 80। ओके, एक्सचेंज रेट हमारा नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट है वो इतना चल रहा है कि $1 इक्वल टू 80 है। बट हम जब बर्गर देखते हैं इंडिया का और यूएसए का, तो हमें लगता है कि जितना $1 में वहां बर्गर खरीदा जा सकता है, यहाँ इतना 60 रुपए में ही खरीदा जा सकता है। मतलब 80 की जरूरत नहीं कि 80 रुपए लगेंगे तभी एक बर्गर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट को छोड़ दो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जो परचेसिंग पावर पैरिटी है हमारी, वो $1 इक्वल टू 60 रुपीज है, ना कि 80 रुपीज है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट को छोड़ दिया तो 60 रुपीज है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, तो ये एक परचेसिंग पावर पैरिटी यही हो गई, मतलब कितनी परचेसिंग, हम जब सिंपल टर्म
इन द राइटिंग टर्म आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू राइट, हम देखते हैं कि द मतलब बास्केट ऑफ कमोडिटी ऑफ द टू कंट्री बी कंपेयर दैट कि हाउ मच रुपीज नीडेड टू buy the these basket of commodity in India and USA. Okay, so in simple term, you understand that these things, so these we call them purchasing power parity. Okay, so let us understand, solve the question. So question is, फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 1 मिनट, फर्स्ट बोल रहा है कि if two countries have same rate of inflation, their PPP exchange rate will remain constant. Yes, it is correct. If the both the countries have same level of inflation, तो जो PPP होगा एक्सचेंज रेट का वो कांस्टेंट होगा. यस, कांस्टेंट ही होगा. अगर हम जैसे मानते हैं कि अगर यहाँ पर मान लो 30 रुपए में बर्गर इंडिया में मिल रहा था और यूएसए में $1 में मिल रहा था. ओके, मैं यहाँ पे ये नॉमिनल एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, मैं बर्गर की बात कर रहा हूँ. इंडिया में 30 में मिल रहा है और वही बर्गर यूएसए में $1 में मिल रहा है. तो अगर यहाँ पर 6% इन्फ्लेशन है, यहाँ भी 6%, क्योंकि ये दोनों बराबर है इस समय. इस समय डॉलर की रियल वैल्यू क्या है, 30 रुपीज है. परचेसिंग पावर पेरिटी मतलब जो रियल वैल्यू है उस पर हम देखते हैं. तो रियल वैल्यू अभी नॉमिनल एक्सचेंज रेट भूल जाओ. नॉमिनल हो सकता है कि $1 हो 60 और 80 इवन. ओके, अभी तो 80 शायद चल रहा है, 80 to 83, तो इतना हो. बट जो परचेसिंग पावर है वो 30, हमारे 30 रुपीज ही $1 के इक्वल है. तो ये अगर जब इन्फ्लेशन 6% होगा तो हम यहाँ 30 लिख सकते हैं कि ये $1 30 है. तो ये भी 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से जो 1.8 अराउंड इंक्रीज होगा और वो भी 1.8 के अराउंड इंक्रीज होगा. ओके, तो प्लीज, तो जब अगर इन्फ्लेशन रेट सेम होगा तो दोनों का जो प्राइस होगा वो सेम ही रहेगा. तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड देखते हैं. सेकंड कह रहा है कि द प्राइस ऑफ सॉरी गुड्स विल बी सेम इन द बोथ द कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड एट पीपी. यस, मैंने तो वो पहले ही बताया ना कि 30 रुपया इक्वल टू $1. अब ये $1 का वैल्यू 70-80 मत लगाओ नॉमिनल एक्सचेंज वाला, आप लगाओगे कि ये 30 रुपए का ही है पीपीपी में. मतलब क्योंकि जितना $1 तुम्हारा खरीद सकता है भाई, हमारा 30 रुपए ही खरीद लेता है. तो हम क्यों नॉमिनल में जाएं, हम तो परचेसिंग पावर पैरिटी में जाएंगे, पीपीपी में जाएंगे. तो यस, द प्राइस ऑफ गुड विल बी सेम इन द बोथ द कंट्रीज व्हेन कन्वर्टेड एट पीपीपी एक्सचेंज रेट. यस, तो यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. इज करेक्ट. आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा मैं मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा समझाने के, बट इफ यू हैव एनी इश्यू यू कैन कमेंट, आई विल पर्सनली मेक द वीडियोज, और अदरवाइज मतलब आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं वहां पर पूरा समझा दूंगा. ओके, सो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 41 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द following statement are true in case the currency of two countries are at purchasing power parity. Again, PPP. आप अगर समझ गए होंगे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, इतना आप समझ लीजिए. ये तो कहता है कौन सा सही होगा. फिर देखते हैं which of the following statement are true in case the currency of two countries are at purchasing power. फर्स्ट देखते हैं कि PPP exchange rate is equal to nominal exchange rate. Okay, so first they are saying that PPP जो exchange rate होता है वो इक्वल होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट के. यस, परचेसिंग पावर पैरिटी में इक्वल ही होता है. ओके, अगर परचेसिंग पावर पैरिटी पर हम देखेंगे तो जो एक्सचेंज रेट होगा वो इक्वल होगा to nominal exchange rate. 1 minute. Okay, so it would be correct. First it would be correct in this. Okay, so how would be correct? Let us understand.
प्लीज आप स्किप मत करना, आपको जाते जाते मैं समझा के रहूंगा कि हाउ इट वुड बी करेक्ट। ओके, स्किप बस आप। हम देखते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी में जो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है वो इक्वल होता है उसके। ओके, तो लेट अस सी। हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइनल क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या था? यस, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा इक्वल होगा किस कंडीशन में? तो द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज आर एट परचेसिंग पावर पैरिटी में क्या होगा? तो हमने कहा कि परचेसिंग पावर पैरिटी में एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो हम पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कि परचेसिंग पावर पैरिटी और नॉमिनल एक्सचेंज रेट फिर से। तो अब हम देखते हैं। ओके, ये अगर जैसे मान लो कि जो परचेसिंग पावर पैरिटी है पीपीपी जो है वो इक्वल है नॉमिनल एक्सचेंज रेट के, यानी यार ओके। तो क्या अब मतलब ये अगर इक्वल हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट के, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अब परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है कि हम लोग जो 30 रुपए का डॉलर 30 रुपए में जो बर्गर इंडिया में मिल रहा था वो $1 में वहां पर मिल रहा था। लेकिन अगर हम वो दे अगर ये इसके इक्वल हो जाए, मतलब अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो भी इक्वल हो जाए किसके? $1 हो जाए हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट 30 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? तो वही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि which of the following statement is true in case the currency of two countries India and USA, two countries are at purchasing power parity। मतलब ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो परचेसिंग पावर पैरिटी पे, परचेसिंग पावर पैरिटी हमने क्या माना? $31। तो हमने फिर उसका आंसर ये लगाया कि जो पीपीपी एक्सचेंज रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा नॉमिनल एक्सचेंज। तो इक्वल नहीं हो गया? देखो, अगर ये परचेसिंग पे आ जाए, 1 मिनट, अगर वो परचेसिंग पे आ जाए तो एनईआर और पीपीपी दोनों इक्वल हो गया, $1.30 $1.30। अब जाना मत, अभी तो बहुत क्वेश्चन है और आप समझोगे, सब समझ। तो यही फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी तो सब बोगस है। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कह रहे हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में कि इफ मिस्टर एक्स हैज आरएस 20 करोड़ इन इंडिया। ओके, एक्स है कोई भाई हमारे, उनके अकाउंट में 20 करोड़ है। ओके, कोई बात नहीं भाई, हमें भी दे देना। और मिस्टर वाई हैज $1 करोड़ इन यूएस बैंक में मान लो। तो वाई जो है उनका $1 करोड़ है, ठीक है, वो यूएसए में है, कोई बात नहीं। Whatever Mr. X can consume in India with Rs 20 crore, the same item can be, यहाँ पर फोकस करना, same item can be consumed by Mr. Y in $1 करोड़ इन यूएस। यहाँ फिर पीपीपी की बात कर रही है, आप अगर समझ रहे हो तो। ये कह रहा है कि इंडिया में जो 20 करोड़ रुपीज है वो यूएसए के डॉलर में 1 करोड़ के इक्वल है। तो सिंपल सा करोड़ हटा देते हैं और अच्छे से समझते हैं इसे। ओके, समझते हैं। ये कह रहा है कि एक सिंपल सी बात समझो कि जो 20 रुपीज ऑफ इंडिया इज इक्वल टू $1 ऑफ यूएसए। तो ये बात कर रहा है, और ये साथ में ये भी कह रहा है कि सेम गुड्स एंड सर्विस वो यूएसए में ले सकता है जितना इंडिया में इंडिया वाले ले। मतलब 20 रुपीज में अगर एक कार ये ले सकता है या एक टॉफी डेयरी मिल्क ये ले सकता है, तो ये यूएसए में भी $1 में वो इतना ही रुपीज लेगा। मैं 1 करोड़ डॉलर को $1 और 20 करोड़ रुपए को 1 से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मतलब
बात कर रहा है कि पीपीपी की मतलब दोनों की परचेसिंग पावर सेम है, इवन द नंबर आर डिफरेंट। 1 मिनट, यस, इवन द नंबर आर 20 एंड 1, बट परचेसिंग पावर दोनों की सेम है, तो $1 इज इक्वल टू 20। तो अब हमको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज वी नो यूपीएससी हैज अ रीजन टू आस्क मेनी टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लेट अस सी, मजा आएगा। क्वेश्चन है कि बोथ ऑफ देम विद देयर मनी मेट एट प्लेस अदर देन, प्लीज रिमेंबर, अदर देन इंडिया एंड यूएसए, देन हु इज रिचर। मतलब कौन ज्यादा अमीर होगा, कौन अंबानी होगा। अगर वो यूएसए में नहीं मिल रहे हैं ना इंडिया में मिल रहे, वो मान लो दुबई में मिल रहा है सबसे अच्छा। अगर वो दुबई में मिल रहे हैं तो दोनों की पैसा कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कौन ज्यादा रिच होगा। वैसे तो हम कह सकते हैं कि डॉलर ज्यादा हो तो डॉलर रिच होगा, बट यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो कॉन्सेप्ट देखो, इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा। क्यों होगा, will be depend on nominal exchange rate of particular countries। yes, मतलब किसी भी कंट्री में मिलते हैं। यहाँ तो मैंने दुबई वैसे एग्जांपल के लिए, अब दुबई नहीं, अगर कहीं भी किसी भी प्लेस पे मिलते हैं वो, तो वो डिपेंड करेगा कि जैसे इंडिया का अगर मान लो दुबई में मिलते हैं, तो इंडिया का जो रुपीज है, 1 मिनट, डॉलर लिख दिया, यस, इंडिया का जो रुपीज है ना, वो 1 रुपया जो है वो दुबई के करेंसी के बराबर कितना है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिपेंड करेगा। कि हो सकता है कि मान लो भाई इंडिया का रुपी दुबई के अगेंस्ट में बहुत मतलब डॉलर से ज्यादा पावरफुल है, तो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पर मिल रहे हैं और वहां से उस कंट्री का एक्सचेंज रेट कितना है। तो उस अकॉर्डिंग चाहे इंडिया रिचर हो सकता है, क्योंकि दोनों के पास ना यहाँ के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग सेम अमाउंट है। तो प्लीज रिमेंबर कि एक्सचेंज रेट डिपेंड करेगा कि यूएसए का जो एक्सचेंज रेट है वो दुबई के अगेंस्ट में कितना है, दुबई के, और इंडिया का एक्सचेंज रेट है वो दुबई के। अगर मान लो कि यूएसए का $1, 1 मिनट, यूएसए का जो है, व्हाट हैपेंड यार, इट इज नॉट राइटिंग। यूएसए का जो $1 है वो इक्वल है दुबई के मान लो 20, जो भी वहां की करेंसी होती थी। बट इंडिया का जो है वो क्या है कि 1 रुपीज है, या फिर मान लो 10 रुपीज इंडिया का जो है वो 30 और 35 के इक्वल है। तो अब इंडिया वाला ज्यादा रिचर हो जाएगा, ज्यादा अमीर हो जाएगा भाई। तो इस अकॉर्डिंग तो वो प्लेस पे डिपेंड करेगा और उस कंट्री का एक्सचेंज रेट और कंट्री के जो जहां से जाएंगे उसके एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। तो इसमें ना एक्स को पता ना वाई को पता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, करके तो जाना है इनको प्रीलिम्स में, वैसे तो नहीं जाना, सारा हम करेंगे। ओके, सो 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंक्रीज इन इंडियाज ट्रेड डेफिसिट में लीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम जो एक्सपोर्ट है वो जो है वो हमारा कम है इंपोर्ट से। मतलब हम इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा, मतलब मंगा तो ज्यादा लेते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ओके, सिंपल सी बात, क्योंकि सोना मंगा मंगा के इंडिया वाले धर लेते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा हमेशा रहता है। मतलब always in the I think in the COVID-19 when we have the surplus, but usually we get the trade deficit in current account. It is always okay. So let us see the option. So ये कह रहा है कि जो अगर ट्रेड डेफिसिट है तो फर्स्ट देखते हैं कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो गई, मतलब ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये नेसेसरी तो ऐसा है नहीं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नेसेसरी नहीं। और अगर हम ठीक से देखें तो लिंकिंग करें, वैसे ये डायरेक्ट लिंकिंग नहीं है,
तो अगर ट्रेड डेफिसिट हुई, ट्रेड डेफिसिट मतलब हमारे पास डॉलर मान लेते हैं कम हो गया $40, तो $40 कम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, डॉलर जो आरबीआई होगा वो सेल करेगा मार्केट में। तो अब जब आरबीआई डॉलर सेल करेगा क्योंकि रुपी डेवल्यूएशन डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो जो रुपी डिप्रिसिएशन डॉलर सेल करेगा, डॉलर सेल करेगा तो रुपी आरबीआई के पास आ जाएगी, तो भाई कैसे मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो कम हो जाएगा ना। समझो, मतलब कॉन्सेप्टुअली समझो, फिर से समझो। 1 मिनट। ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेड डेफिसिट होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो ट्रेड डेफिसिट मतलब हमारे पास -$40 कम पड़ रहे हैं मार्केट में। तो अब क्या होगा, अगर आरबीआई नहीं सेल करता तो जो ₹60 का था $1 वो 80 का हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा, कहेगा कि अब हम सेल करते हैं डॉलर फॉरेक्स रिजर्व से अपने। अब जब ₹40 वो डॉलर सेल करेगा तो जो रुपीज है मार्केट में वो, मतलब डॉलर देगा तो आरबीआई रुपया लेगा ना, जीजा थोड़ी लग रहे हैं जो वैसे दे देगा। तो भाई इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ओके, लेट अस सी अनदर ऑप्शन। और मैंने आंसर शायद इनडायरेक्टली आपको बता दी। बी इज depreciation of rupees. Yes, it will be lead the depreciation of rupees. 1 minute, please wait. Okay, so yes, it will be lead the depreciation of rupees. How? हमें पता है कि अगर डॉलर जैसे मान लो $40 कम हो गया मार्केट में, तो अब डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। और डॉलर क्यों स्ट्रांग हुए, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई, और जिसकी डिमांड बढ़ती है वो भाई अप्रिशिएट हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। तो स्ट्रांग होने का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले $1 जो था वो ₹60 का था, तो अब $1 कितने रुपए में हो जाएगा, 70। मतलब ये डॉलर जो है, मान लो ये आलू है, तो पहले जो आलू जब अवेलेबल थी तब भाई वो 60 में बिक रही थी, अब 40 किलो आलू कम हो गई, तो अब कितने में हो गया वो आलू, वही दाम जो आलू का था वो 70 बढ़ गया, क्योंकि आलू कम है। अब जिसके पास पैसा होगा वो खाएगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। तो ये सिंपल सा है, तो यस, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अप्रिसिएशन तो होगा नहीं क्योंकि डिप्रिसिएशन होगा, इंक्रीज ये तो कोई भाई रिलेटेड ही नहीं, जीडीपी कहाँ, जीडीपी थोड़ी ना, ये तो आसमान में मान रहे हैं। ओके, तो अब 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन और राइटिंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड डेप्रिसिएशन, अगेन मतलब वही कॉन्सेप्ट आपको दोहराना है। डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी, मतलब क्या से डेप्रिसिएशन हो सकता है करेंसीज का। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेड और अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एंड डिवेल्यूएशन में डिफरेंस। ओके, सो फर्स्ट एक मतलब गांठ बांध लो, जैसे शादी हो गई है तुम्हारी इस कंसेप्ट से, कि अगर रुपी डेप्रिसिएट होगी तो इसका क्या होगा जानते हो, इट विल लीड टू एक्सपोर्ट इंक्रीज। ओके, अगर रुपीज एप्रिसिएट होगी तो इट विल लीड टू द एक्सपोर्ट में डिक्रीज हो जाएगा और इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ये गांठ बांध लेना बिल्कुल। अब हम देखते हैं डिप्रिसिएशन और डिवेल्यूएशन में अंतर क्या है। अभी देख लेते हैं इसी टाइम। तो डिवेल्यूएशन क्या होता है, पहले डेप्रिसिएशन समझते हैं, तो डिवेल्यूएशन बहुत इजी होगा। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि जब मार्केट का डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज रेट, जब मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई के रीजन से जब एक्सचेंज रेट और रुपी जब डेप्रिसिएट होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। रुपी की जब वैल्यू कम होती है बिकॉज ऑफ द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, लाइक $1 जब ₹70 था, अब एक डॉलर ₹80 हो गया, बट इट इज बिकॉज ऑफ द मार्केट, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये कहलाएगा कि रुपी डेप्रिसिएट हो गई, इसकी पावर जो है वो कम हो गई। ओके, हम देखते हैं डिवैल्यूएशन क्या है। डिवैल्यूएशन वैसे आप मतलब इतना तो सबको पता ही होता, फिर भी
डिवैल्यूएशन इज मतलब जब हम रुपी की जो मतलब किसी कंट्री के अगेंस्ट में रुपीज की जो पावर है वह परचेसिंग पावर है उसको हम कम कर दें। फॉर व्हाट? फॉर द गेनिंग एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की। जैसे मैंने बताया कि जब रुपी डिप्रिशिएट होती है या जब रुपी का वैल्यू कम होता है तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है। ये वो आपको। तो जब आरबीआई इसमें मतलब इंटरवीन करके और रुपीज को डिप्रिशिएट करती है, रुपीज को वैल्यू कम हो जाती है, मतलब जैसे कि $1 70 से 80 हो जाता है, तो और ये करे कौन? आरबीआई करे। आरबीआई कैसे करेगा? भाई डॉलर की डिमांड है लेकिन आरबीआई डॉलर रिलीज ही नहीं कर रहा है भारत से, तो रुपये डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो इसको हम डेप्रिसिएट ना करके उसको अलग ही टर्म में डिवैल्यूएशन कहते हैं, क्योंकि ये इंटेंसली मतलब इंटेंशन वे में किया गया है इसको, मतलब अननोनली नहीं हुआ है, नोनली इसको कम किया गया, मतलब जानते हुए इसको कम किया गया। ओके, सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन एंड एक्सपोर्ट में क्या linked है। Okay, so let us solve this question. Question वाला है, which of the following situation will lead to depreciation of a country's currency? देखते हैं भाई कौन सा depreciate कर सकता है। फर्स्ट कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो, ये तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया भाई। अगर पहले 40 आ रहा था डॉलर और अब 400 आ रहा, तो भाई रुपी तो और इंक्रीज हुई क्योंकि डॉलर ज्यादा हो गया। अब आलू ज्यादा हो गई मान लो, टमाटर ज्यादा हो गया भाई इस टाइम, प्याज 400 क्विंटल ज्यादा हो गया या टमाटर ज्यादा हो गया, तो अब इसकी डॉलर की तो पावर कम हो जाएगी लेकिन रुपी की पावर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर लेकर आएंगे तो पैसा लेंगे ना एक्सचेंज करके। अब जैसे कोई फॉरनर आया भाई, कह रहा है कि लो भाई ये $80 जमा कर लो बैंक में, या फिर मुझे $80 बैंक, वो फॉरनर $80 दिया और बोला मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो अब $80 जो मतलब इसने किसी मतलब किसी भी इम्पोर्टर को, इंडिया के इम्पोर्टर इंडस्ट्रीज को $80 दिया, तो अब ये डॉलर जो 80 है वो तो मतलब घूम घुमा के आरबीआई के पास ही आएगा ना, और आरबीआई को फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा जब डॉलर हो जाएगा तो पैसा मार्केट में कम होगा, मनी सर्कुलेशन मतलब मनी की डेफिशिएंसी होगी, तो इससे मनी अप्रिसिएट होगा, तो इससे डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं। और ये पूछ रहा है कि कौन सा डेप्रिसिएशन लीड कर सकता है, तो फर्स्ट तो गलत है। ओके, तो फर्स्ट हम कर देते हैं रॉन्ग, क्योंकि ये तो उल्टा बात कर रहा है यार। ये क्या हो गया? 1 minute प्लीज गाइस, व्हाट हैपेंड टू इट यार? 1 minute। यस, सो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि भाई इनफ्लो होने से रुपी का अप्रिसिएशन होगी, इतना याद रखना, डेप्रिसिएशन तो नहीं हुआ। पूछा है डेप्रिसिएशन। राइज इन इंटरेस्ट रेट, अब ये भी मतलब थोड़ा तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट इससे भी रुपी का एप्रिसिएशन होगा। कैसे? अब मान लो कि इंटरेस्ट रेट जो है इंडिया में डिपॉजिट पे या बॉन्ड यील्ड है, या फिर मान लो कि कंपनी के जो शेयर हैं वो बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, हम डिपॉजिट यहाँ ले रहे हैं, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ अगर डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 10% है, ओके, लेकिन और यूएसए में जो है वो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% मान लेते हैं। तो वहां से तो लोग डॉलर निकाल कर इंडिया में लेकर आएंगे, और जब डॉलर जाता होगा तो रुपये का अप्रिसिएशन होगा। ये कान बांध लेना है अपने वे। तो यस, इट इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, मैंने पहले ही बताया कि जब भी डिप्रिसिएशन होगा एक्सपोर्ट पे लगाना है, मैंने बताया। और जब भी रुपये का अप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। तो सी इज करेक्ट इन दिस। आई होप आई एबल टू अंडरस्टैंड यू। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शायद। 45 नंबर क्वेश्चन, द एक्सपोर्ट competitiveness of a country with its trading partners can be best measured through which of the following exchange rate? मतलब कहता है कि एक्सपोर्ट का जो कम्पिटिटिवनेस है
वो हम किस रेट से या किस एक्सचेंज रेट से बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं, बहुत इफिशियंटली मेजर किया जा सकता है एक्सपोर्ट बिटवीन कंट्रीज, कौन सा रेट फॉलो करके। ओके, सो देखते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। भाई नॉमिनल एक्सचेंज रेट से हम कैसे एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस देख लेंगे, क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलता है कि $1 80 रुपीज है, ठीक है। बट भाई हमारा सामान तो जितना तुम्हारा $1 में वहां मिलता है उतना हमारा यहाँ तो 30 रुपए में मिलता है ना। तो तुम लोग तो आओगे भाई, एक्सपोर्ट मतलब हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम 80 में मतलब तुम्हारा वहां $1 में जितना मतलब आ सकता है, वहां तुम $1 हमारे यहाँ लाओगे तो 2 बर्गर लेकर जाओगे, समझ रहे हो। क्योंकि अगर जैसे देखो कि अगर वो एक यूएसए का पर्सन यूएसए में खरीदता है तो उसको $1 पे करना पड़ेगा और एक ही बर्गर मिलेगा, मुंह बना लेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर वही $1 कहेगा अब मैं इंडिया जाऊंगा, और इंडिया में क्योंकि $1 80 का तो चल रहा है भाई, लेकिन क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी जो है $1 की 30 है, तो मैं $1 दूंगा और वहां से डबल ले आऊंगा, समझ रहे हो। तो ये बात है, तो भाई इस हिसाब से तो नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट नो। रियल एक्सचेंज रेट नो, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। नॉमिनल इफेक्टिव, नॉमिनल तो पॉसिबल ही नहीं। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यस इट इज पॉसिबल। व्हाई? देखो जो रियल एक्सचेंज रेट होता है, आपको लगा होगा कि रियल एक्सचेंज रेट मैंने क्यों काटा, 1 मिनट। जो रियल एक्सचेंज रेट जो होता है ना, वो कुछ ही पैरामीटर को कवर करता है, लाइक ये जो है डोमेस्टिक प्राइस को कवर कर लेगा, बट ये कवर नहीं कर, डोमेस्टिक प्राइस मतलब जो इंडिया में उस प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है, समझ रहे हो। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को देखने के लिए प्राइस तो देखना पड़ेगा ना, इन्फ्लेशन तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये सारा फैक्टर जो है वो नहीं कवर करता। बट रियल जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो सारे फैक्टर कंप्लीट करता है, चाहे लाइक प्राइस रेट क्या चल रहा है, डोमेस्टिक प्राइस रेट ऑफ दैट प्रोडक्ट, इट आल्सो करेक्ट कि अब्रॉड में क्या चल रहा है, वो भी ये कवर करता है। तो और ये यहाँ पर जो रियल एक्सचेंज रेट है इसके भी फैक्टर और नॉमिनल एक्सचेंज रेट की भी फैक्टर ही कवर करता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। तो ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, वो बेस्ट मेजरमेंट है कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करने के लिए बिटवीन द कंट्रीज। ओके, आई थिंक आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टेबल। तो रट्टा मारना हो तो रट्टा भी मार सकते हो कि अगर किसी कम्पिटिटिवनेस को देखना है, और हमको पता है भाई 2022 प्रीलिम्स में ये री रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पूछा था, तो ये याद रखना। ओके, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रुपीज एप्रिसिएटिंग, एप्रिसिएशन का मतलब पता है कि $1 60 का था तो 50 का हो गया, इन रियल टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, देन मतलब फिर क्या हो सकता है। फोर्थ से पहले फर्स्ट ही देखते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट कंपटीशन विल डिक्रीज, मैंने बताया कि अप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा, पहला ही सही, सिंपल सी बात, मतलब ज्यादा तो जाना ही नहीं। एप्रिसिएशन लीड मोर एक्सपोर्ट, डेप्रिसिएशन डिक्रीज, नो, डेप्रिसिएशन जो होगा वो एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, एप्रिसिएशन डिक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा इंपोर्ट में होगा। तो अब इसका तो और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे सेकंड में क्या बोलते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव बिल इंक्रीज, कैसे इंक्रीज हो जाएगा भाई। भाई यहाँ रुपी अप्रिशिएट हो रही है, अप्रिशिएट मतलब जो सामान है वो इंडिया में महंगा हो जाएगा, तो फॉरेनर को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब मान लो जैसे कि पहले फॉरेनर जो थे वो $1 में 60 रुपीज का सामान खरीदते थे, अब रुपी अप्रिशिएट हो गई तो $1 हो गया 40 का, अब उनको 40 का ही सामान मिल रहा है, तो भाई वो क्यों आएंगे खरीदने। तो इससे एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा जब रुपी अप्रिशिएट हो जाएगी। अप्रिशिएट मतलब ऐसा मत समझना कि 40 का 50 मतलब 100 हो जाए या 60 हो जाए तो नहीं,
अप्रिशिएट मतलब ये कम होता जाएगा, रुपये हमारा कम होता जाएगा, तो इसको अप्रिसिएशन कहते हैं। वैसे आप लोग ये सब तो पता ही होगा, बट फिर भी मतलब ये वो होता है। तो लेटेस्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे तो भाई बहुत गजब गजब क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देख के ही लगता है प्यार हो गया है। सो ये कहते हैं कि इफ रूपी, फिर से वही भाई, इफ रूपी depreciating then it leads to increase in cost of imports in dollars। एक बात याद रखना भाई, इन डॉलर से मतलब डॉलर्स की बात हो रही, और कह रहा है कि अगर रुपी डिप्रिशिएट होगी तो ये मतलब जो इम्पोर्ट का मतलब कॉस्ट है वो डॉलर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं। इफ रुपी इज डेप्रिसिएटिंग देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। क्यों है ऐसा, कैसे होगा? अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रही देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर, कैसे भाई? पहले मान लेते हैं हम, इन द सेंस इट इज बोथ आर इनकरेक्ट। हाउ? लेट अस अंडरस्टैंड वेरी वेल। पहले हम मान लेते हैं, ये क्या कहता है, हाँ ये कहता है कि अगर रुपी डेप्रिसिएट होगी, मतलब $1 मान लो 60 का था 70 का हो गया। ओके, रुपी डेप्रिसिएट हो गई यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि अर्निंग मोर डॉलर पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। भाई अगर पहले आप 60 रुपीज का सामान एक्सपोर्ट करते थे, आप $1 मानते, आप 70 का करोगे भाई, तब भी आपको $1 मिलेगा। थोड़ी ना ये कहेंगे कि डॉलर भाई तुम ज्यादा ले लो, तो यहाँ मोर डॉलर कैसे हो गया भाई? मोर डॉलर तो हो ही नहीं सकता ना। आप मतलब, यस, आप मोर डॉलर कैसे हो गया? मोर डॉलर नहीं होगा, आप सेम डॉलर अर्न करोगे। हाँ, बट एक चीज है कि जब आप ये डॉलर जमा करोगे आरबीआई में, तो पहले आपको 60 मिलता था, अब 70 मिलेगा, तो पैसा ज्यादा हो जाएगा सेम एक्सपोर्ट में, लेकिन आपका डॉलर तो सेम आपको मिलेगा। मतलब ट्रिक लगाया है सर ने, इसीलिए कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देख लो, इफ रुपी इज डेप्रिसिएटिंग देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग डॉलर। क्यों भाई कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग डॉलर? आपकी रुपी चाहे डिप्रिसिएट हो या कैसे, डॉलर में थोड़ी ना कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग इंक्रीज होगा, वो तो रुपी में होगा। डॉलर तो पहले भी $1 में 60 का खरीदता था, अब से $1 वो आप देगा, आपसे 70 का सामान खरीदेगा। सिंपल सी बात है, आपको तो एक ही डॉलर मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इन डॉलर्स नहीं इंक्रीज होगा। ओके ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने एक्सपोर्ट को लेके बताया, बट आई अंडरस्टैंड माई, आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड। इफ यू नॉट अंडरस्टूड जस्ट मैसेज मी, मैं कॉल करके आपको टेलीग्राम पे समझाऊंगा यार। ओके, which of the following will be the impact of rupee depreciation? उसमें जानते हो कौन सा आंसर है? डी है भाई, दोनों को इनकरेक्ट है। तो अब देखते हैं इसका। मैं कहता है which of the following will be the impact of rupee depreciation, मतलब अगर रुपी डेप्रिसिएट हो रही है तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा। ओके, 1 मिनट कि रुपी अगर डेप्रिसिएट हो, डेप्रिसिएट मैंने पहले ही बता दिया कि $1 50 का था तो 70 का हो गया, तो डेप्रिसिएट हो गई रुपी, रुपी की परचेसिंग पावर कम हो गई। ठीक, तो अगर ये कहें कि रुपी अगर डेप्रिसिएट होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, फर्स्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट विल बी मोर कम्पिटिटिव। भाई ये मैंने आपको कितनी बार समझाया कि वो गांठ बांध लेना है, एप्रिसिएशन और डिप्रिस की। रुपी जब डेप्रिसिएट होगी एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, रुपी जब अप्रिसिएट होगी एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। तो ये तो गांठ बांध लेना है, शादी कर लो इससे, गर्लफ्रेंड को भूल जाओ तब तक। ओके, सेकंड देखते हैं। एक्सपोर्टर विल बी फेच मोर डॉलर, फिर से वही देख लो फर्स्ट डॉलर, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। क्यों तुम ज्यादा डॉलर पाओगे? फिर से देखते हैं वही सेम स्टफ कि $1 में मान लो कि पहले वो जब न रुपी मतलब एप्रिसिएट होती एंड अप्रिसिएट होती तब 60 का था, तो वो जब 1 kg मान लो
टी है जो वो 60 की है। तो भाई मान लो ये 60 का इंपोर्ट कर दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया उसने, और उसको क्या मिल गया, $1 मिल गया। ओके, नाउ अब रुपया क्या हो गया, वो डेप्रिसिएट होकर 70 हो गया। तो अब क्या करेंगे ये, अब भाई अगर रुपया डेप्रिसिएट होकर 70 हो गया, तो अब ये जो मतलब 1 मिनट, ये 1 kg फिर से यहाँ पर वो एक्सपोर्ट करेंगे, और जो एक्सपोर्ट करेंगे फिर भी वो उनको $1 ही देगा ना, चाहे वो मतलब 70 का हो या 60 का हो भाई। तुम्हारी भले 60 की कॉफी है, अब तुम ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अब 60 रुपए की कॉफी आप बेच दोगे $1 में, और आप आ जाओगे 70 रुपए, क्योंकि रुपया डिप्रिशिएट होगा, इसलिए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, और ये इनको ज्यादा अच्छा भी लगेगा। ओके, बट आप तो पाओगे सेम, ऐसा थोड़ी ना कि वो अब कहेगा तुम्हें $1.5 दे दूंगा। भाई क्यों दे देगा वो $1.5? तो ये तो भाई इनकरेक्ट है। ओके, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज कमेंट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो डॉलर में द सेम अमाउंट ऑफ गुड, ज्यादा डॉलर नहीं मिलेगा भाई, डॉलर तो सेम ही मिलेगा आपको, पैसे में ज्यादा कम बढ़े, वो डॉलर थोड़ी ना अप्रिशिएट डिप्रिशिएट, आपको पैसे के रीजन से इम्पेक्ट पड़ रहा है ना भाई। डॉलर क्यों कब ज्यादा होगा, डॉलर तो वही होगा। ये मतलब बिल्कुल गांठ बांध लेनी। हाँ, अगर रुपया बोलता कि अगर रुपया ज्यादा सेम अमाउंट मतलब वो एक्सपोर्ट में ज्यादा रुपया, तो मान सकते थे एक बार। फिर थर्ड देखते हैं कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस, मैंने पहले ही बताया कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी भाई। ये तो मैंने पहले ही बताया ना कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिसे मानते हैं भाई। जैसे कि $1 क्या था, पहले $1 में उसको मतलब 1 kg चाय मिलती थी। 1 kg चाय का दाम मान लो ₹30 था। ओके, तो उसको 1 kg चाय $1 में मिल जाती थी। अब क्या हुआ, रुपया डेप्रिसिएट हो गया, मतलब इसका मतलब 1 kg चाय मतलब $1 इक्वल टू ₹30। अब क्या हुआ कि जो ये डॉलर था वो हो गया मान लो 90, तो अब उसको सेम डॉलर में $1 ही वो देगा, डॉलर नहीं इंक्रीज हुआ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट कंफ्यूज, डॉलर तो सेम रहेगा, लेकिन अब उसको सेम डॉलर में, जानते हो क्या हो, क्या हो, सेम डॉलर में उसको 3 kg मिल जाएगी चाय। तो यस, ये डोमेस्टिक गुड का जो डिमांड हो गया वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि रुपया डेप्रिसिएट हो गया, तो वो तो मतलब मैंने डायरेक्ट ही बताया था कि गांड बांध लो, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें भाई करेक्ट मतलब 2 तो इनकरेक्ट था, तो ये गया 1 एंड 3 करेक्ट, तो 1 एंड 3 वुड बी आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगर अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब कर देना, मन करे तो। ओके, 49, सपोज करें मतलब सोच लो, ड्यू टू हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा है भाई, रुपी स्टार्टेड डेप्रिसिएटिंग, रुपी की परचेसिंग पावर जो है वो कम हो रही है, बट आरबीआई यूज द फॉरेक्स रिजर्व टू प्रिवेंट द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। बिल्कुल, मतलब अगर $1, 1 मिनट, $1 ₹70 से ₹80 हो गया, तो डेप्रिसिएट हो रही थी, तो आरबीआई क्या करेगा कि वो डॉलर बेचना शुरू कर देगा। अब जब डॉलर बेचना शुरू कर देगा, डॉलर की जो डिमांड थी वो कम हो जाएगी, और जब डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी तो रुपी फिर से 70 पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रुपी स्टार्टेड डेप्रिसिएटिंग, बट आरबीआई यूज टू फॉरेक्स रिजर्व टू प्रिवेंट द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब देखना है। इससे कह रहा है कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा वो इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज कर जब इंक्रीज होगा तो कोई काम ही नहीं, एक्सपोर्ट विल बी बिकम मोर कम्पिटिटिव। देखो रियल जब एक्सचेंज रेट के तो एक्सपोर्ट का तो कम्पिटिटिवनेस आ ही गया इसमें, तो मोर जो क्यूमुलेटिव है वो 1 ही है, तो नो इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा भाई, ट्रेड पे तो इम्पैक्ट होना ही होना है। तो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, मान लेते हैं
एक बात आप मतलब इकोनॉमी में देख लेना, बहुत ज़्यादा लिंकिंग करने में भी मत पड़ना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लिंक करोगे ऐसे 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 होगा फिर वैसे फिर से, तो आप घूम घूम के एक ही गलत पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो शॉर्ट में समझो, आगे बढ़ो। तो पहले मान लेते हैं कि $1 जो था वो 30 रुपीज का था। तो रुपी अब मतलब डेप्रिसिएट हुई थी जैसे तैसे, इसने डॉलर सेल करना स्टार्ट कर दिया आरबीआई ने। तो अब क्या मान लेते हैं कि एप्रिसिएशन हो। तो जो $1 था वो मान लो 15 का हो गया। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज हो गया, एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज ही हुआ ना हमारा। तो बस जस्ट सिंपल टर्म में समझो, बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल में जाकर खुद के भाई कुछ नहीं मिलना, ऊपर से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो फर्स्ट चीज इसका करेक्ट होगा। नहीं समझ में आया मैसेज करो, समझाया जाएगा यार। और भी डीप में अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये उसमें फर्स्ट या यहाँ पर फर्स्ट मार सकते हो, ओनली वन। तो यहाँ पर याद रखना है कि चाहे नीर हो, मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, या रीर हो मतलब नॉमिनल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अगर जो रुपीज है वो अप्रिशिएट हो, यहाँ अप्रिशिएट ही तो कर रहा है आरबीआई डॉलर बीच के, अगर जो रुपीज है वो अप्रिशिएट होगी तो जो ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो भी इंक्रीज होगा। जैसे गांठ बांध लो, जैसे वो गांठ बांधा था, ये इतना गांठ बांधो, इतने से ही काम हो जाएगा। ज्यादा तो मतलब इसमें जाना कोई फायदा नहीं। 50 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन, वीडियो तो चल रहा है ना, हाँ। रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर द ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल, और फाइनेंस ट्रेड, यू कैन से, तो फाइनेंशियल ट्रेड। तो इसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट देखने के लिए चार है भाई, पूरा आ भी नहीं रहा है, थोड़ा इस्तेमाल करते हैं जिससे सारे ऑप्शन आ जाए एटलीस्ट। तो देखते हैं कि ट्रांजेक्शन हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज, उसके रिगार्डिंग हमको बताना है कि क्या सही होगा। तो हम देखते हैं। ओके, ये कह रहा है कि देयर इज, मतलब यहाँ पर आपको सिंपल याद रखना है कि जो एक्सचेंज रेट वगैरह है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका क्या मतलब, उससे रिलेटेड हमको ये स्टेटमेंट, उसको माइंड में रखकर ये स्टेटमेंट सॉल्व करना है। ये कह रहा है देयर इज एन इंटरनेशनल अथॉरिटी, मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, जो ये सब मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ट्रेड, तो देयर इज ए इंटरनेशनल अथॉरिटी विद द पावर टू फोर्स द यूज ऑफ पार्टिकल करेंसी। मतलब इसका कनोटेशन देखो, मतलब देख के लगता है कि कोई मर्डर करने वाली बात कर रहा है भाई ये। तो ये गलत, पहले ही गलत। देयर इज नो इंटरनेशनल अथॉरिटी विच इज अ पावर टू फोर्स द कि ये पार्टिकुलर करेंसी आप ट्रांजेक्शन में यूज करोगे। क्यों भाई, तुम्हारे दादा का राज चल रहा है। ओके, तो ये गलत, फर्स्ट इज गलत, रॉन्ग। सेकंड देखते हैं। देयर इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज व्हिच कैन ओनली बी यूज टू सेटल द इंटरनेशनल। क्यों भाई, मतलब बास्केट ऑफ करेंसी मतलब मान लो 5-6 करेंसी उन्होंने चूज कर लिया, 5-6 कंट्री, अब वो उसी का ट्रांजेक्शन ऐसा होता तो हमारी कंट्रीज का, हम अभी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज कर रहे हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है रुपी में इंटरनेशनल लेवल पर, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े। तो ये हो ही नहीं पाता, हर कंट्री चाहता है कि उसकी रुपीज की, उसके करेंसी की इंटरनेशनल में वैल्यू बढ़े, उसके लोग मतलब एक्सेप्ट करें। तो ये होगा तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये गलत है भाई। ये तो बोल दिया कि ये तो मेरी ही बेबी है। ओके, सॉरी। सो लेटेस्ट थर्ड में देखते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ जिससे आपको मतलब याद रहेगा, थोड़ा मतलब बोरिंग नहीं। करेंसी which maintain a stable purchasing power are generally accepted, मतलब यहाँ ये नहीं कह रहा कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये कह रहा है कि हाँ जिस करेंसी का एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट मतलब स्टेबल होगा, परचेसिंग पावर उसकी स्टेबल होगी, उसको ज्यादा लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। जैसे डॉलर, डॉलर के देखो मतलब ना ज्यादा डिप्रिशिएट होता है ना ज्यादा एप्रिशिएट होता है, ये मतलब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्टेबल है।
तो इसकी एक्सेप्टेंस तो इंक्रीज हो ही जाएगी। अब जैसे मान लो भाई रुपी किसी ने 30,000 रुपये ले लिया, कोई इंटरनेशनल इंडिविजुअल ने, नॉन रेसिडेंट ने, और उसके पास ये 30,000 रुपये है। अब वो 1 साल बाद आया, उसको पता चला अरे भाई ये तो मतलब इसकी पावर पैरिटी बिल्कुल कम हो गई है यार। अब मैंने जितना डॉलर दिया था, 30,000 लिया था, उतना डॉलर तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रुपये की परचेसिंग पावर कम हो गई है। समझ रहे हो? मान लो पहले $5 करके 30,000 ले लाया था, लेकिन अब क्या हुआ कि रुपये डिप्रिशिएट हो गई, तो अब उसको केवल $4 मिल रहे हैं। तो ऐसे कोई करेंसी रखेगा? कहेगा नहीं भाई, ये तो मतलब रखने से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ मैं खोकर बैठ गया। तो ये मैं जस्ट ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब मेरा कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, मैं जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ समझाने के लिए। ऐसा तो मतलब रियल में हो पॉसिबल इतना जल्दी नहीं। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज आर जनरली एक्सेप्टेड, यस ऑफ कोर्स। मतलब जो फ्रीली कन्वर्टेबल जैसे डॉलर हो गया, युआन हो गया, यूरो हो गया, ये सब फ्रीली कन्वर्टेबल, मतलब किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और फ्रीली कन्वर्टेबल मतलब चाहे कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करो या करंट अकाउंट में। जैसे हमको पता है कि हमारी करंट अकाउंट की तो फुल कन्वर्टेबिलिटी है, बट कैपिटल अकाउंट में हमने कुछ इम्पोजिशन कर रखा है कि इससे ज़्यादा आप कैपिटल अकाउंट में पैसा बाहर नहीं ले जा सकते या अंदर नहीं ला भी नहीं सकते। और करंट अकाउंट मतलब ट्रेड पर्पज से आप कितने भी पैसे लेकर जाओ लेकर आओ। तो जिसकी करेंसी कैपिटल और करंट दोनों में होगी, फुली कन्वर्टेबल होगी, सारी करेंसी में कन्वर्ट होगी, उसका तो एक्सेप्ट। तो 3 and 4 करेक्ट। आई थिंक थक गया हूँ यार, बट लेटेस्ट वी विल कंप्लीट दिस। सो इसमें 3 and 4 ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 51 is कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, वही मैंने इंटरनेशनलाइजेशन अभी आपको समझाया कि इसके बारे में बताओ कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज क्या है। तो उसके रिगार्डिंग हमको ये स्टेटमेंट देखना है। ओके, सो ये कहता है कि इट मीन्स, हमको बताना है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज क्या है। तो ये कहता है इट मीन्स यूज ऑफ रुपी फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉन रेसिडेंट। हाँ भाई ठीक है, मतलब नॉन रेसिडेंट मतलब मान लो यूएसए के 2 पर्सन है, वो करेंसी का हमारा इंडियन करेंसी को यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन में। ठीक है भाई, तो इससे इंटरनेशनलाइजेशन तो इंटरनेशनल लेवल पर यूज हो रही है। सही है भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, सेकंड पर है इट मीन्स यूज ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन। यस, रेसिडेंट मतलब इंडियन, मान लो इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट जो इंडिया में ज्यादा दिन रहे, तो मतलब इंडिया में जो ईयर का 185 के अराउंड आई थिंक जो इंडिया में सेटल हो जाए रहता हो उसको रेसिडेंट। तो इन 1 ईयर। ओके, सो रेसिडेंट मतलब इंडिया वाले इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट मतलब किसी दुबई वाले पर्सन से, और इंडियन रुपी में। तो यस, ये भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज इंक्रीज ही कर रहा है। थर्ड बोल रहे हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री प्लेज रोल इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। भाई क्यों नहीं प्ले करेगा? मतलब आपको पहले 1 मिनट वाइज आ रही है आउटसाइड से। यस, तो इट इज करेक्ट, क्योंकि अगर आपकी जैसे मान लो डिफेंस टेक्नोलॉजी आपकी बहुत हाई है तो लोग आपसे बाय कर रहे हैं। जैसे रसिया, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे इजराइल, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी बेच रहा है, और वो अगर वो बेच रहा है तो मतलब उसकी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो हमें पता है कि किसी भी रुपीज की एक जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक्सपोर्ट पे, जीडीपी शेयर ऑफ इन द ग्लोबल लेवल ऑफ दैट कंट्री, एक्सपोर्ट शेयर ऑफ द ग्लोबल लेवल ऑफ दैट कंट्री, इस पे डिपेंड करता है भाई, हाईली डिपेंड करता है। बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोर्ट और बिजनेस आपके कितना सेटल है। तो आपकी जितनी जीडीपी पावर होगी, और जीडीपी पावर का एक सेक्शन ये भी है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी आपकी ज्यादा है। तो यस, इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर भाई तीनों और ऐसे क्वेश्चन में तो भाई ऑल ऑफ दी अबव में जाना ज्यादा ही सेफ ही होता है। ओके, तो डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
रिटेल इन्वेस्टर आर अलाउड टू डायरेक्टली एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्राइमरी मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। उसको माइंड में रख के ये हमको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। तो थर्ड से पढ़ेंगे भाई, फर्स्ट से पढ़ के थक गया हूँ। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द गवर्नमेंट। यस, अब जैसे मान लो, वैसे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आरबीआई इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट एजेंट। ओके, तो आरबीआई का प्लेटफॉर्म है ई कुबेर प्लेटफॉर्म, जहां पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करता है या ऑक्शनिंग करता है। और पहले क्या था ये याद रखना, पहले जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं बाय कर सकते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन 2021 में आरबीआई ने अलाउड कर दिया कि अब आप डायरेक्टली मुझसे मतलब राजा से बाय कर सकते हैं आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, यही वहां पर डायरेक्टली एक्सेस से पूछ रहा है क्या इफेक्ट होगा। तो इससे इफेक्ट होगा कि अब बहुत सारे पर्सन जो है वो मतलब यहाँ पर बाय करने पहुंचेंगे, क्योंकि वैसे इनडायरेक्टली उनको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ता था, उससे उनको ज्यादा मतलब पैसे देने पड़ते थे। तो इससे मतलब समझ रहे हो, उनको डीलर डीलर से बाई किया तो उनको ज्यादा चार्ज देना पड़ता था। तो लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ लिया जाए कि नहीं, लेकिन अगर उनको डायरेक्ट और फ्री में मिल रहा है, मतलब फ्री मतलब विदाउट द एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, तो यस, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। उनको पता है किसी के बॉन्ड जो होता है वो डिपेंड करता है डिमांड पे। किसी कंपनी का बॉन्ड या कि गवर्नमेंट का बॉन्ड की एक्सेप्टेंस ज्यादा हो गई तो इसकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। अगर एक्सेप्टेंस नहीं तो गवर्नमेंट को ज्यादा पे करना पड़ेगा कि भैया ले लो ले लो ले लो। तो और इन्वेस्टर कहेगा नहीं हम नहीं लेंगे, और भी ज्यादा इंटरेस्ट दो तब लेंगे, इंटरेस्ट रेट दो तब हम लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिमांड है कि सब कह रहे हैं हमें चाहिए, तो वो कहेंगे भाई पहले मैं 7% दे रहा था अब 4% दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो सिक्योरिटी चली ही जानी है गोल। तो यस इट इज करेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट भाई। थर्ड से पढ़ा और थर्ड ही हमको बहुत अच्छा मिल गया। अगेन इट गॉट 1 minute each. I think now it work. 1 minute is not. यस, तो उसका जो होगा एक्सेप्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉम्पिटिटिव ऑक्शनिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट। यस इट इज आल्सो करेक्ट, इट इज डायरेक्टली गिवन इन द व्हेन गवर्नमेंट, मतलब ये ई क्यूआर फॉर प्लेटफॉर्म पे जब उन्होंने गिल्ट अकाउंट स्टार्ट किया, जिससे मतलब ई क्यूआर प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल रजिस्टर करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं नॉट कम्पिटेटिव ऑक्शनिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इन प्राइमरी मार्केट। और कम्पिटेटिव कौन ऑक्शनिंग करता है, जो एनबीएफसी होते हैं, पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, ये सब मतलब आरबीआई के ये भी कस्टमर होते हैं। ये भी जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ आरबीआई उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट जब ऑक्शनिंग करती है या जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऑक्शनिंग करती है, तो ये लोग मतलब ऑक्शनिंग करते हैं, मतलब प्राइस लगाते हैं, डिमांड लगाते हैं कि कोई बोलेगा 7% देंगे, कोई बोलेगा 4%, कोई 5, तो जो हाईएस्ट होगा उसको ले जाओ। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज, जैसे मान लो पब्लिक सेक्टर बैंक बाय कर रहे हैं, एनबीएफसी बाय कर रही है, तो इंडिविजुअल भी इससे उनको कॉन्फिडेंस आता है और कोई बाय करते हैं। ये फर्स्ट देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर विल बी अलाउड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकंड। मैंने ये पहले ही बता दिया कि दे आर, पहले वो प्राइमरी मार्केट में नहीं अलाउड था, लेकिन 2021 से आरबीआई ने कहा कि हमारी ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करके आराम से बाय और सेल कर सकते हैं। तो यस ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल सी 53। 53 कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इश्यूड थ्रू ऑप्शन कंडक्टेड ऑन ई कुबेर
मैंने ये पहले बता दिया है, आप मतलब वो मत करना इक्विबेर के बारे में। आप ना ये देख लोगे वीडियो, आपका मतलब इसमें 450 क्वेश्चन है ना, आपको कम से कम 4 से 5 हजार क्वेश्चन कवर होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप शेयर करना चाहें तो कर दें, मेरा गला पूरा बैठ गया यार। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग हमको बताना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इश्यूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड ऑन इक्वेयर व्हिच इज द कोर, मैंने बताया ना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ आरबीआई प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। यस इट इज करेक्ट। 53 का फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड देते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज द सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये हमको याद रखना है रट्टा मार के कि जो ये डीलिंग सिस्टम ऑर्डर है नेगोशिएट करते हैं वहां पर, ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। तो भाई बोथ आर करेक्ट। ओके ओके, सो भाई आउटसाइड की वॉइस को इग्नोर करना, मुझे पता है डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज इग्नोर दैट। 54 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है क्या। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटा सिक्योरिटीज होती हैं, या ट्रेजरी बिल होता है, या सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। वैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन जो होता है वो स्टेट्स के होते हैं। ओके, याद रखना, पहली बात तो ये याद रखना। ओके, और सेकेंड इज इट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लॉन्ग टर्म में ये बोलना मत भाई कभी भी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट टू रेज द फंड्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और तो हम ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद अभी और भी जानकारी जो मैं आपको पहले हम पूरा पहले देख लेते हैं। थर्ड से पढ़ेंगे अपने, आरबीआई मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट ऑफ स्टेट। यस यार, हमको पता है कि आरबीआई इज द डेप्ट मैनेजर ऑफ द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, इज अ बैंक टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यस, आरबीआई मैनेज द पब्लिक डेप्ट ऑफ स्टेट एंड इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये थर्ड तो करेक्ट है भाई। सेकेंड देखते हैं, इट इज अ ट्रेडेबल। भाई लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरह है, ट्रेजरी बिल की तरह है, डेटा सिक्योरिटी की तरह है, कैश एंड मैनेजमेंट बिल की तरह। तो भाई क्यों नहीं ट्रेड हो सकता, ट्रेडेबल है। ये एक इंसान मैंने बाय किया, मैं आपको सेल कर सकता हूँ, ये ट्रेडेबल है, बिल्कुल है भाई। ओके, टू इज ऑल्सो करेक्ट। इट कैन बी यूज्ड, 1 मिनट, यस इट कैन बी यूज्ड अंडर एसएलआर बाय बैंक्स। यस इट कैन बी यूज अंडर, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे। चाहे एसएलआर बाई बैंक्स, एसएलआर मतलब एसएलआर एक प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं कि उनको अपने डिपॉजिट का जो 18% है वो लिक्विड फॉर्म में रखना है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई डेजिग्नेट करेगी कि हाँ ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, या ये बॉन्ड है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे ये 18%। तो ये एसएलआर वही होता है। तो इसको कहते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब लिक्विड फॉर्म में इसको रखा जाता है। लिक्विडिटी मतलब जिसको बहुत ही इजीली कन्वर्ट किया जा सके कैश में, तो इसलिए ये 18% वो रखा जाता है। तो यस, आरबीआई ने अलाउ कर रखा है कि जो बैंक होते हैं वो अपने 18% ऑफ डिपॉजिट कैन बी इन्वेस्ट इन द स्टेट बैंक स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो वो मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके लोन्स में। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आज करेक्ट। तो अभी हम इस पे नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा और देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेज द लोन्स और कैन टेक द लोन फ्रॉम द मार्केट। तो फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल, लिखते जाइए, ट्रेजरी बिल। फिर कैश मैनेजमेंट बिल, याद रखना, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट एंड डेटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटी। तो ये जो ट्रेजरी बिल है और कैश मैनेजमेंट बिल है ना, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है भाई,
मतलब कांट मान लो। देन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है कि लेस देन 1 ईयर, 90 या कुछ 90 डेज हो सकता है या 190 डेज हो सकता है, बट वो 1 साल से कम का ही उसकी मेच्योरिटी होगी। मेच्योरिटी मतलब अगर ये ट्रेजरी बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करेगा, वो अगर 90 डे का हो, मतलब आपने ट्रेजरी बिल में 100 रुपए मान लो इन्वेस्ट किया, तो आपको 90 डे दिन के बाद आपको ये भाई मिल जाएंगे आपके 100 रुपए, मतलब मेच्योर हो गया वो। ओके। कैश मैनेजमेंट बिल्स इज आल्सो शॉर्ट टर्म बट डेट सिक्योरिटी जो है ना, ऐसा मान लो कि गर्लफ्रेंड ने डेट पे बुलाया लेकिन 2 साल हो गए, मतलब मोर देन 1 ईयर, तो इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म मनी स्टोरेज, इट इज लॉन्ग टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट टू रेज द फंड बाय द सेंट्रल। ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट है। ओके, आई होप मैंने अभी स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट तो मैंने बता दिया, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इतना याद रखना भाई, भूलना मत किसी भी हाल में। ओके, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 55 कह रहा है कि which of the following statement are true regarding कैश मैनेजमेंट बिल्स। मैंने अभी आपको कैश मैनेजमेंट के बारे में बता दिया है, अब आप इसे देखते हैं। इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाई स्टेट गवर्नमेंट। भाई मैंने बोला है, अब आपको देखना है, तो ये सही है भाई, मैंने कहा ना सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है कैश मैनेजमेंट बिल। ओके। इट इज यूज टू फंड फिजिकल डेफिसिट। मैंने उसी टाइम आपको एक बात और बताई थी कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है भाई, और ये जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है इसका ऑब्जेक्टिव ही है जो जो मतलब जो टेम्परेरी मिसमैचमेंट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट एंड रिसिप्ट में, उसको कंप्लीट करता है ये भाई। कोई फिजिकल डेफिसिट वगैरह का कोई इसका रीजन नहीं है। कट करो इसको। तो इट इज नॉट अंडर द फिजिकल डेफिसिट इसको फंड करने के लिए, तो टू इज इनकरेक्ट। थर्ड देखते हैं, या देख लो यहाँ पर, इट कैन बी यूज फॉर टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑन द गवर्नमेंट। यस इज राइट, मैंने पहले ही बता दिया। 1 and 3 is a correct answer for this. ओके। ट्रेजरी बिल के बारे में एक बात आप मतलब याद रखना कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं ना, जीरो कूपन रेट बॉन्ड होते हैं या जीरो कूपन रूट बिल होते हैं। मतलब जीरो कूपन मतलब इस पे ये इंटरेस्ट पे नहीं करते। कहोगे तब कोई पागल थोड़ी है भाई जो मतलब इसको खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भाई, क्यों पागल थोड़ी है जो मतलब भाई 100 रुपए दे के खरीद लो आज और मेच्योरिटी डेट पे 100 रुपए फिर से पा जाओगे भाई, पागल थोड़ी खरीद। तो आप याद रखना, सही बात है, पागल नहीं है। ये जो होता है वो डिस्काउंट पे सेल होता है। डिस्काउंट मतलब 100 रुपए उस पे बॉन्ड पे तो लिखा रहेगा, लेकिन कहेंगे आरबीआई कि लो तुम मुझे 90 रुपए ही दे दो आज। ओके। तो ये डिस्काउंट पे सेल होता है कि 90 रुपीज दे दो, ठीक है, और 100 रुपए का हो जाएगा, और जब मेच्योरिटी होगी तो आकर आप 100 रुपए ले लेना। सिंपल सी बात। डिस्काउंट पे सेल होता है और रिडीम होता है फेस वैल्यू पर जो लिखा होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो याद रखना ये कोई इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड नहीं है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जीरो कूपन रेट बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सोचा बता ही देते इसी बार। ओके। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। मैंने एसएलआर आपको बताया था बहुत अच्छे से, अगर आपने याद किया होगा। मेंटेन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ओके, तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं थर्ड स्टेटमेंट से एज यूजुअल। तो कैश मैनेजमेंट बिल बहुत अच्छे से किया भाई, उतना ही। ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लॉस, all are considered SLR. Yes, they are considered SLR securities. RBI has allowed the scheduled commercial bank that they can invest 18% of SLR quota in these securities. तो याद रखना
कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, डेटेड सिक्योरिटी, इन सब में शेड्यूल कमर्शियल बैंक एसएलआर का कोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड तो करेक्ट हो गया भाई अपना। कैन बी मेंटेन एज अ कैश बैलेंस विथ आरबीआई, जो कहते हैं जो एसएलआर है ये आरबीआई के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, आई होप, मतलब मुझे लगता है कि ये सही है भाई। मतलब आपको लगता हो कि नहीं वो तो बैंक को अपने आप मैनेज करेगा, अपने पास रखेगा, क्योंकि वो बैंक लिक्विडिटी के लिए रखा जाता है इसको। बट भाई ऐसा जरूर, मतलब बिल्कुल कंपलसरी नहीं कि तुम शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो तो तुम अपने पास से 18% रहोगे। आरबीआई तो भाई भुक्खड़ है ही, वो कहेगा आने दो, जितना आना है आने दो, तुम पैसा ले आओगे मैं रख लूंगा और उसको मैं इंटरेस्ट में तुमको रेपो में दे दूंगा, मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, जो कि हमने सीनियोरेज में देखा। ओके, तो यस इट इज पॉसिबल एंड इट इज अलाउड, ये याद रखना कि एसएलआर जो है वो एसएलआर का पैसा जो है वो आरबीआई के पास भी रखा जा सकता है, लाइक अ सीआरआर। ओके, और एक बात और भी याद रखना कि सीआरआर पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देता आरबीआई, बट हो सकता है कि एसएलआर पे वो इंटरेस्ट दे आरबीआई कि हाँ तुमने पैसा दिया है, तुमको 4% इंटरेस्ट दे देते हैं। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो इन सिक्योरिटीज में करते हैं तो 9 to 8% उनको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो क्यों भाई वो अपने हाथ से अपना गला काटेंगे। एंड अब थर्ड देखते हैं, बहुत ही अच्छा है ये, जो कि ये हमको पता है प्रीलिम्स में ये बहुत करता है, ये एक्ट के अंदर ये बॉडी है, ये है वो है, चांद पे ये गया, कौन उतरा, वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं कि इट इज मेंटेन एज पर आरबीआई एक्ट, यहीं पर ट्रैप है भाई। ये आरबीआई एक्ट के अंदर एसएलआर नहीं अलाउ किया गया है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अलाउ है। भाई गांठ बांध लो कि जितनी रेगुलेटिंग थिंग्स है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और जितना सीआरआर किस में है याद रखना, सीआरआर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन में नहीं है, वो आरबीआई एक्ट में है। तो दोनों, और सीआर, एक बात और याद रखना कि जो सीआरआर और एसएलआर होते हैं ना, इनको स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन पे ना जानो, बट इनको स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं कि दोनों का स्टेचुटरी बैकअप है। एक सीआरआर का आरबीआई एक्ट है और एसएलआर का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो ये दोनों स्टेचुटरी रेट हैं ये। तो भाई हो गया आई थिंक, क्लिक करते हैं यार और आगे बढ़ते हैं एज यूजुअल। आई होप तो अंडरस्टूड। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, ये दो करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 and 3 करेक्ट आंसर। ओके, 1 minute प्लीज गिव मी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेज एंड मीन्स एडवांस। बेज एंड मीन्स एडवांस के बारे में पहले हम सिंपली कुछ समझ लेते हैं। ओके, तो ये बेज एंड मीन्स एडवांस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो मिसमैच होता है ना, यूजुअली 14 डेज के लिए या 90 डेज के लिए जो मिसमैच होता है, जैसे कि मान लो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को 90 रुपए पे करने हैं उस मंथ में, मान लो जनवरी में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यार हमारे पास तो 80 रुपए ही हैं, तो अब चलो 10 रुपए का पेज एंड मीन्स एडवांस इंस्ट्रूमेंट इशू करके आरबीआई से 10 रुपए उधार ले लेते हैं, तो वो कहलाता है पेज एंड मीन्स एडवांस। सेंटर एंड स्टेट बोथ कर सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो पहले ये क्लियर होना चाहिए। एंड अब हम पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। थर्ड से पढ़ेंगे, हमारा थर्ड से ही स्टार्ट होता है। इट इज अ इट इज टू मीट द टेम्पररी मिसमैच ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट। मैंने तो बोल ही दिया भाई, तो ये थर्ड तो सही है, टेम्पररी के लिए ही होता है, ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म या फिजिकल डेफिसिट ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट रेट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांस ऑन अ रेपो रेट, याद रखना भाई, रेपो रेट पे
गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा अगर वो आरबीआई से पैसा लेता है बेज एंड मीन्स एडवांस के अंडर। ओके, तो भाई ये 2 भी सही है। थर्ड देखते हैं, और इंटरेस्ट रेट और उसके बाद जब मेच्योरिटी से 14 डेज के लिए है, 14 डेज के बाद उनको रिटर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उन्होंने नहीं रिटर्न किया तो उनको पेनाल्टी भी लग सकती है आरबीआई से। ऐसा मत सोचना कि आरबीआई तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट का नहीं, नहीं भाई, ये लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा होगा। इट इज अवेलेबल बोथ, मैंने तो बता दिया, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो तीनों करेक्ट है। ओके, तो याद रखना कि बेज एंड मीन्स एडवांस इज अ टेम्पररी लोन instrument by the central and state government to fulfill the or to complete the temporary mismatch of receipt and payment. It is a short-term instrument and it can be issued by the both central and state government, and interest charge on the base and means advance are the repo rate. If there is a delay in the repayment, RBI can charge penalty rate too. पेनाल्टी रेट मतलब रेपो रेट प्लस 3% और इंटरेस्ट रेट लगा देगा। कि नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं 58। क्या सोच रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया है तो आज 60 क्वेश्चन तक करते हैं, बाकी कल करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग, वैसे इसके आगे के क्वेश्चन तो बहुत मस्त है भाई, जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे सब चले गए। अब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, अब मजा आ जाएगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेज एंड मीन्स एडवांस। भाई मैंने भी लगता है कि मतलब भर बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो इसको सॉल्व। सो इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है इट इज अ ट्रेडेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई 14 डेज को मैंने बताया यार, या मान लो 19 डेज का हो गया, तो यार इतना ही ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। और पहली बात ये आरबीआई से लड़ रहा है, आरबीआई किसको ट्रेड करेगा, मतलब थोड़ा वो करो, तो ये तो गलत हो गया भाई। मतलब सोचो कि आरबीआई से पैसा ले, आरबीआई थोड़ी कहेगा, क्योंकि आरबीआई को 90 डेज बाद रिपेमेंट कर देगा, तो वो कहेगा थोड़ी कि हाँ तुम लो ये बेच में एडवांस हमको, या तुमको कहे कि ये रख लो तुम। ऐसा थोड़ी होता है, वो आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच है, वो सिटीजन या फिर वो इंडिविजुअल नहीं ले सकते, समझ रहे हो। तो भाई ये ट्रेडेबल नहीं है, ये जो बेच एंड मीन्स एडवांस है ट्रेडेबल नहीं, क्योंकि ये दो गवर्नमेंट के बीच में समझौते की बात है, वो गवर्नमेंट और दो इंस्टीट्यूशन के अंडर होता है। इट इज, तो ये इनकरेक्ट हो जाए। इट इज यूज टू फंड गवर्नमेंट फिजिकल, भाई फिजिकल मैंने बताया था यार कि फिजिकल डेफिसिट नहीं है इसका रीजन, इसका टेम्पररी मिसमैचमेंट, दोनों इनकरेक्ट दिया है। ओके ओके, 59 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि which of the following statement will be true if the inflation in the economy is increasing। मतलब इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या सही होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज मतलब क्या भाई, पहले 90 रुपीज में आप 1 kg ऑनियन ले सकते थे, अब क्या हुआ कि वो ऑनियन का दाम बढ़कर क्या हो गया, 95 हो गया। तो ये इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं कि ऑनियन का दाम बढ़ गया। तो इसमें आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन से इकोनॉमी के, या फिर इसमें इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। थर्ड से पढ़ेंगे एज यूजुअल, द यील्ड ऑन बॉन्ड्स विल इंक्रीज। इट इज करेक्ट, हाउ करेक्ट, आई विल मेक यू अंडरस्टेबल कि हाउ इट विल करेक्ट। तो जैसे देखो, जब इन्फ्लेशन होता है इन जनरली वी कैन अंडरस्टैंड इन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, बिकॉज हमको पता है कि जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट होता है, जो कूपन रेट होता है, वो फिक्स होता है, कि अगर आपको बोल दिया उसमें 7% भाई आपको पर ईयर मिलेंगे, तो आपको 7% ही मिलेंगे, चाहे वो इन्फ्लेशन हो 10%, इन्फ्लेशन हो 11%, आपको रिटर्न जो होगा वो 7% ही मिलेगा। और हमको पता है कि जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी होता है तो जनरली नॉट ऑलवेज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द इकोनॉमी ग्रोज वेल इन द माइल्ड इन्फ्लेशन टाइम, और उस समय शेयर जो होता है वो बहुत अच्छे रिटर्न देते होते हैं। आप देखना, मतलब आप समझने का ट्राई करना कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो बॉन्ड है वो तो मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करेगा, लेकिन जो शेयर है उसके रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, उसका डिविडेंड जो कहते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा।
तो लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड है उसको कहेंगे कि यार ये तो 7% ही दे रहा है, उधर शेयर में हमको 20% मिलेगा रिटर्न, मतलब पर वो मिलता है इंटरेस्ट रेट। वो जनरली यहाँ से बॉन्ड बेचना स्टार्ट कर देंगे, बहुत फास्ट बॉन्ड बेचना। 1 मिनट, इट इज नॉट वर्किंग। यस, व्हाट हैपेंड, 1 मिनट प्लीज। हाँ, तो क्या बताया कि बॉन्ड का क्योंकि इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट फिक्स होता है और शेयर का इन्फ्लेशन के टाइम पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो लोग बॉन्ड बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो एक और भी गांठ मान लो, तुमने एक से कॉन्सेप्ट से तो शादी कर ली, अब तुम करो पॉली एंड क्या कहते हैं पॉलीगेमी, 2 3 4 से शादी करो। एक दूसरे कॉन्सेप्ट से आप शादी करो कि जब बॉन्ड का, जैसे देखो, अब बॉन्ड सब लोग बेचना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि शेयर में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। तो जब बॉन्ड ज्यादा हो गया, बॉन्ड ज्यादा बिक रहे हैं भाई, तो जब बॉन्ड ज्यादा बिकेंगे ना, तो बॉन्ड की जो प्राइस होगी, प्राइस मतलब मान लो 90 रुपीज में खरीदा था, लेकिन वो अब कह रहे हैं क्योंकि मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना, मैं 70 में ही बेच के जा रहा हूँ। तो बॉन्ड की प्राइस जो होगी ना भाई, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज नहीं होगी? क्योंकि सब लोग बेच रहे हैं तो ज्यादा बॉन्ड हो गया ना भाई, चाहे ज्यादा जो भी हो वो हानिकारक है, ज्यादा प्यार भी हो वो भी हानिकारक होगा। तो बॉन्ड की प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। और जब हमको एक कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल शादी कर लेनी है उससे, कि जब जब बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा, तब तब बॉन्ड यील्ड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब बॉन्ड यील्ड क्या है? बॉन्ड यील्ड मतलब मान लो, जैसे देखो पहले 90 रुपए में, या मान लेते हैं 100 रुपए में उसको खरीदा था, और 9% इंटरेस्ट रेट मिले तो कितना हो गया? 9% हो गया। ओके, अब इसने बेच दिया। ओके, इसने क्या किया? बेच दिया। तो 9% इंटरेस्ट रेट पहले मिलता था, इसने बेच दिया। लेकिन अब जानते हो उसका बेचा किसने, कितने में? इसने 90 रुपए में। ओके, इंटरेस्ट रेट कितना है? 9, बी और 100, तो 9 दो 90, और यहाँ पर 9। तो अब कितना है हो गया बॉन्ड यील्ड? 10%। समझ में आया? यस। तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, वैसे आप लोग को ज्यादा ही पता होता है। तो ये सही है, तो थर्ड भाई हम सही मारते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं, बॉन्ड होल्डर्स विल लूज। भाई इन्फ्लेशन में मैंने बताया क्यों भाग रहे थे बॉन्ड होल्डर्स, क्योंकि उनको फिक्स मिल रहा था और इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। मान लो कि 7% उनको इंटरेस्ट मिला, लेकिन इन्फ्लेशन चल रहा है 9%। भाई 2% हो ये, मतलब कम ही हो रहा है ना उनका पैसा। तो यस, इट इज आल्सो करेक्ट। बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज, मैंने बताया ना कि लोग बेचने लगते हैं तो उससे बॉन्ड प्राइस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो अब ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या होगा? यूजुअली ऑल ऑफ दी अबव वुड बी करेक्ट इन दिस। बिल्कुल इसको रट्टा मार लेना, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि जब बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा, तब बॉन्ड यील्ड जो होगा वो इंक्रीज होगा। शादी कर लो इस कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 60 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद स्टॉप करें क्या? ये देख लें अभी और वो देखते हैं इस बार के बाद। द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता होगा ये क्वेश्चन तो यूपीएससी भाई पहुंच रखा है उसने। ये पी वाई क्यू है डायरेक्ट, मान लो पी वाई क्यू। देखो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब देखते ही लग रहा है कि हाँ ये क्यू और यूपीएससी। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड है, वो
किससे इन्फ्लुएंस होगा? इन्फ्लुएंस मतलब इसका इफेक्ट किस इनसे जितने भी ये एक्शन है उनका इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, थर्ड से हम देखते हैं एज यूजुअल। थर्ड में क्या है, लिक्विडिटी इन द मार्केट। बिल्कुल भाई, जो इंटरेस्ट रेट होगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी इससे इन्फ्लुएंस होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट यूजुअली इन्फ्लुएंस होता है इससे। कैसे इन्फ्लुएंस होता है? जैसे मान लो कि यहाँ मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, ओके, तो इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो उनको ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, सो सिंपल सी बात है कि पैसा कितना मार्केट में है इससे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना भाई। अगर मान लो कि मार्केट में पैसा ही नहीं है भाई, पैसा है ही नहीं मार्केट में, मान लो केवल 50 रुपए ही मार्केट में है, केवल 50 रुपए, भाई गवर्नमेंट ने इशू कर दिया बॉन्ड, प्राइवेट कंपनी ने इशू कर दिया, इस और किसी मतलब पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन ने इशू कर दिया बॉन्ड। अब इसी 50 रुपए के लिए सब दौड़ रहे हैं कि हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए। तो भाई इंटरेस्ट रेट तो इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि अब जिस जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा उसी को ये लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा। तो यस, इट इज करेक्ट। ओके, तो थर्ड इज करेक्ट। यूएस फेडरल बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जैसे इंडिया का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या है, रेपो है, तो वैसे मान लो यूएसए का जो भी उनका यूएसए का रेपो रेट होगा तो वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? क्योंकि अगर यूएस का फेडरल बैंक जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट क्या है इजी क्या है हम आगे देखेंगे, इसमें आप टेंशन मत लेना, अभी इतना समझो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो वहां पर डॉलर की शॉर्टेज होगी। और या फिर जो इंडिया के जो एफपीआई लोग हैं ना, जो भगोड़े हैं, सॉरी बट एफपीआई मतलब ये तुरंत भाग लेते हैं जैसे थोड़ा सा भी। तो जब वहाँ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट जो लोन पे है वो ज्यादा बढ़ गया है यूएसए में, तो ये एफपीआई लोग भाग भाग के वहां कहेंगे कि हम यहाँ से अब पैसा अपना निकालेंगे और यूएसए में जाकर लोन देंगे भाई, आराम से ज्यादा 10% में, क्योंकि इंडिया का शेयर मार्केट 6% ही दे रहा है और यूएसए में लोन पर हमको 10% मिलेगा। तो भाई उससे क्या होगा, रुपये डिप्रिशिएट होगी, अप्रिशिएट, तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, ओके। थर्ड, रेपो रेट इंडिया का भाई करेगा ही करेगा। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अभी मान लो कि बैंक का मतलब बैंक जो आरबीआई है वो कहे कि देखो मैं 6% में बैंकों को लोन दे रहा हूँ, और हमको पता है जो रेपो रेट होता है ये बैंकिंग डिपॉजिट रेट से भी लिंक होता है। तो अगर 6% पे आरबीआई दे रहा है तो ये डिपॉजिट जो बैंक होंगे वो कितना डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट देंगे इंडिविजुअल को, ज्यादा से ज्यादा 3% और भी कम कर सकते हैं। तो भाई अब अगर गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड, यार क्या हो जाता, तो गवर्नमेंट को अगर 5% ही देती है तो इंडिविजुअल कहेंगे यार छोड़ो, यहाँ डिपॉजिट पे 3% ही मिल रहा है, हम 5% पे इन्वेस्ट करेंगे आराम से। तो इससे भी इन्फ्लुएंस होता है। तो आंसर वुड बी, व्हाट वुड बी आंसर? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं 61। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पीवाईक्यू है तो देखते हैं, मजा आता है भाई, पीवाईक्यू तो देखने में अलग ही मजा आता है। Which of the following statement correctly describe the meaning of legal tender money? एज मैंने तो भाई मुरनाल सर से पढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर के मतलब दो कंडीशन होती हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि जो मनी है ना वो फियाट मनी होनी चाहिए और विच कैन मेजर द वैल्यू। अब कहोगे कि फियाट मनी क्या है, तो वो भी देखते हैं। तो फियाट मनी जो होता है ना उसकी भी दो कंडीशन, मतलब कोई भी मनी के फियाट मनी होने के दो कंडीशन।
पहला कंडीशन कि वो या तो कोई सेंट्रल बैंक इशू किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया हो, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैल्यू को मेजर कर सकता हो। और सेकंड कंडीशन है कि वो ऐसे फॉर्म में होना चाहिए जो मेजर कर सके वैल्यू को। तो फर्स्ट, इट शुड बी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, एंड सेकंड, इट कैन मेजर द वैल्यू, दैट वी कॉल दैट फियाट मनी। ओके, तो अब लीगल टेंडर क्या? लीगल टेंडर के पहले तो वो फियाट मनी होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू भी मेजर करे और सेंट्रल बैंक से इशू भी हुआ हो या गवर्नमेंट से। और सेकंड कि वो लीगल टेंडर हो। लीगल टेंडर में अगर मैंने आपसे उधार लिया है और आप मुझे रिटर्न कर रहे हो पैसा, तो भाई मैं मना नहीं कर सकता कि मैं ये पैसा नहीं लूंगा। आप मुझ पे केस कर सकते हो, दैट कॉल द लीगल टेंडर। मतलब वो लीगली आप मतलब बाउंड हो एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी आप पेमेंट सेटलमेंट के। तो इसमें द मनी व्हिच इज टेंडर्ड, भाई वो तो मतलब वैसी मनी तो वो मान सकते हैं कि डिफे द फी ऑफ लीगल केस। भाई चेक से कर दिया तो क्या चेक लीगल टेंडर हो गया? नहीं है भाई लीगल टेंडर। वैसे चेक का जो एक्ट है उसमें कह रहे हैं कि आप मतलब अगर उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है कि अगर आपका चेक फेल्ड होता है या आपका चेक में आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपने चेक पास कर दिया, तो आप पर केस किया जा सकता है, बट वो अदर प्रोविजन है, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, द मनी व्हिच इज क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अंडर द क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दिया है, भाई क्रेडिटर वही होगा। कंपल्सन टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, यस दैट इज करेक्ट। मतलब अगर आपने बैंक से लोन लिया है भाई, मतलब करने को तो आप चेक में भी कर सकते हो, लेकिन बैंक चेक को वैसे करते नहीं, मतलब कि मना नहीं करते, लेकिन वो मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे में रिटर्न करने जाते हो कि लो पैसा, तो भाई वो मना नहीं कर सकते कि मैं ये पैसा नहीं लूंगा, या कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता। उसके अंदर सेडिशन भी लग सकता है, सेडिशन का केस समझ लो, बहुत बड़ा केस। तो भाई टू इसका करेक्ट होगा। रट्टा मान लेना भाई, 3-4 बार यूपीएससी ने पूछा है इस पे। ओके, 2 घंटा पूरा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा भाई, बिल्कुल गजब क्वेश्चन है ये, सीरियसली। और एक बात मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो कंपल्सन वगैरह मतलब ये मनी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कंपल्सन है ना, ये सब आरबीआई एक्ट में मेंशन है। ऐसा नहीं कि हाँ ये कोई मतलब, और ये एक्ट भी याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934, नॉट अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इट इज मेंशन इन आरबीआई एक्ट 1934 section 26 that bank money is legal tender and legal tender is the money which is bound the creditor to accept। तो याद रखना ये आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, बैंकिंग या पेमेंट सेटलमेंट एक्ट में नहीं है, आरबीआई एक्ट में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम भाई थर्ड से ही पढ़ेंगे, थक तो बहुत गया हूँ, बट स्टिल लेटेस्ट स्टार्ट। जैसे कि मेरा बोलने की ज़्यादा मतलब आदत नहीं ना, हैबिट नहीं, तो ये मतलब ज़्यादा हैवी लग रहा है। ओके, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। करेंसी नोट्स आर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%। जो करेंसी नोट होती है वो गवर्नमेंट, उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यस इट इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशूड बाय द आरबीआई। लाइबिलिटी किसकी है? आरबीआई की है ऑफ कोर्स। ओके, करेंसी एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर। भाई क्यों नहीं है लीगल टेंडर? लीगल टेंडर तो है ही भाई, करेंसी हो या कॉइन हो दोनों लीगल टेंडर है। अगर 5 रुपए का कॉइन लेकर आप जाते हो और कोई दुकानदार मना करता, आप केस कर सकते हो उस पे, अगर उसने मना कर दिया तो यस करेंसी एंड कॉइन आर लीगल टेंडर। फिर सेकंड देते हैं, करेंसी टू नॉट। पहले यही पे पहुंच जाते हैं, जैसे नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बट कॉइन्स हैव। भाई देखो, एक बात आप याद रखना, आपको मतलब यहाँ पे लग सकता है, मुरनाल सर से मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी पहले लगा था, तो ये टू तो हमने पहले करेक्ट मार दिया, थर्ड सेकंड पे हमको देखो, जो राजा महाराजा के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन होते थे, सिल्वर कॉइन होते थे,
उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। ओके, करेंसी की तो नहीं है, पेपर का तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि अगर आप पेपर को पेपर की तरह यूज नहीं कर सकते तो आप उसको अदर तरह, मतलब करेंसी को करेंसी की तरह यूज ना करके आप अदर यूज कर सकते हो। आप भाई करेंसी के अलावा उसको और किस में यूज करोगे, लिख भी नहीं सकते उस पर तो आप। तो इस अकॉर्डिंग करेंसी की तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और उसी तरह जो आजकल की कॉइन्स है उनकी भी नहीं, लेकिन राजा महाराजा की कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। लाइक अगर 5 ग्राम गोल्ड की कॉइन है 5 रुपए की, मान लो उस टाइम पे, तो आप इस गोल्ड को या तो कॉइन की तरह यूज कर लो सामान खरीदने, या आप इसको पिघला कर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंगूठी बनवा लो। ठीक है, तो इस उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अदर वे में। तो आज की करेंसी और कॉइन दोनों में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और इवन जो हमारा कॉइनेज एक्ट 1906 है, वो प्रोहिबिट करता है मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन को आप मेल्ट नहीं कर सकते, अगर मेल्ट करते तो आपको चार्जेस लगेंगे। और इवन इसमें जो है निकिल और कॉपर का जो एलॉय होता है वो यूज होता है, तो आप इसका यूज भी अब नहीं कर सकते कुछ भी। तो भाई इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो ये याद रखना। अभी तक हमारे 2 करेक्ट हो चुके हैं और ये इनकरेक्ट हो चुका है। अब वन देखते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स ऑफ फियाट मनी। फियाट मनी मैंने बता दिया है पहले ही भाई। फियाट मनी की पहली कंडीशन क्या है कि ये इशू किया जाना चाहिए किसी सेंट्रल अथॉरिटी से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो या हमारे यहाँ आरबीआई मान लो, तो वो उससे इशू। और सेकेंड कि ये वैल्यू को मेजर कर सके। यहाँ 5 रुपए की चाय है, 10 रुपए की चाय, तो वैल्यू तो मेजर कर रहा है ना चाय की। तो हाँ, तो भाई चाहे वो कॉइन हो, कॉइन कौन इशू करता है, फाइनेंस सिक्योरिटी मानते हैं, लेकिन जो सर्कुलेट करता है वो आरबीआई करता है। तो वो भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, आरबीआई की करेंसी तो सेंट्रल अथॉरिटी है ही। ओके, सो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। भाई बहुत थक चुका हूँ, सीरियसली मेरा गला बैठ गया है। सो सॉरी, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड प्लीज इग्नोर द आउटसाइड वॉइस। एंड थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू जेपीडी चैनल। जय हिंद, जय भारत। एंड अगर कुछ ऐसा बोला हो तो उसके लिए सॉरी। और ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पे या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो भाई थैंक यू सो मच। और कुछ भी अगर ऐसा बोला तो उसके लिए माफ कर देना, हाथ जोड़ के। थैंक यू सो मच, थैंक यू।